कार्बन फ्री रेडिकल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल. कार्बोकटाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन आयन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन फ्री रेडिकल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल. इफ यू गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन. मींस यहां पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना. टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. यहां पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. यहां पे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन. This is odd electron species. It is a neutral species because here it has कार्बोकटाइन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस फ्री रेडिकल के अंदर क्या है, नो चार्ज. So it means this is a neutral and there are 7 valence electrons. 1 2 3 4 5 6 and this is 7th. It is highly reactive. क्यों ये रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. वो मांग रहा है मेरे पास कुछ कमी है, दे दो दे दो. So means it needs electrons. That's why it is reactive, highly electron reactive, as it requires only 1 electron to complete its octet. Octet complete होने के लिए सब लोग दुनिया में परेशान है कि मैं खुश कैसे होऊंगा, खुश कैसे रहूंगा. जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब तक ये मॉलिक्यूल या कोई भी एटम या ग्रुप खुश नहीं रहता है. इसलिए वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपनी खुद की रिएक्टिविटी बढ़ा के वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश कर रहा है. इफ यू गो फॉर द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, if you go for the geometry and hybridization, we have already seen the carbocation is sp2 hybridized, carbon ion is sp3 hybridized. If you go for this carbon free radical, it is something special because here sometimes you will find it is sp2 hybridized, sometimes you will find it is sp3 hybridized. And if you go for the geometry, it is slightly pyramidal. Why it is sometimes sp2 and why it is sometimes sp3, you can see here. If you go for alkyl free radical, now in this alkyl free radical there are electron releasing groups attached to this alkyl free radical which are donating electron, due to which it is sp2 hybridized as per. Okay, now and it is trigonal planar. If we see the geometry, it will be trigonal planar and odd electron present in a p orbital. ये जो odd electron यहाँ पे है ये p orbital में present है इसके. लेकिन इस यहाँ पे अगर देखेंगे तो this is carbon free radical which has electron withdrawing groups attached to it. Electron withdrawing group pulls electron outside. यहां पे क्या हो जाता है, ये जो odd electron यहां पे लगा हुआ है, ये इसको ऑलरेडी और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है. तो फिर ये अनस्टेबल होने लगेगा, ये अनस्टेबल होने लगेगा. ओके, तो यहां पे शेप कैसा आ जाएगा, फिर पिरामिडल शेप आ जाएगा. बिकॉज वाइल लाइक जब आप ढूंढते हैं, शेप ढूंढते रहते हैं, तब आप लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए इसका शेप कैसे आ जाएगा, पिरामिडल. और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. सो ऑड इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज इन sp3 orbital and the overall hybridization of this is sp3. Okay, now if you want to summarize all these things, you can see here free radical which is having releasing groups and free radical which is having electron withdrawing group. Hybridization for this is sp2 hybridized, for this is sp3 hybridized, and the location of odd electron is in p orbital, location of odd electron is in sp3 orbital. If we see, there is very important point we have noted here, that is resonance stabilized carbon free radical are planar. ये जो resonance stabilized carbon free radical होते हैं ये planar होते हैं. Okay, now next, stability is one of the most important aspect. The most two important sentence here are electron releasing group increases the stability of free radical, electron withdrawing group decreases the stability of free radical. If here you can see these are electron releasing group. इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबलाइज करेगा. इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, अनस्टेबल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम मार्क करेंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर हाईली स्टेबल देन टर्शियरी. टर्शियरी के अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है. क्योंकि और दूसरी बात, ये तीन जो ग्रुप है यहाँ पे अल्किल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन दे देके इसको स्टेबलाइज बना देते हैं. यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे तो 0 है. सो टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन मिथाइल, एज वी हैव सीन इन द कार्बोकटाइन. दिस इज same order. Tertiary is greater than secondary is greater than primary. Okay, and least stable is vinyl free radical and phenyl free radical. Okay, now the conditions where this free radical formation takes place is
हेल्प आर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल। इन सब कंडीशन में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन फेवर होता है, इट गेट्स फेवर्ड। इन सब कंडीशन में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन फेवर होता है, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से जो रिएक्शंस बनते हैं उनको नॉन पोलर रिएक्शन कहते हैं हम। एंड द रिएक्शंस, अपने सिलेबस में कौन से रिएक्शन है जहां पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है? रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स आर हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, which you are going to see in the hydrocarbon chapter, addition of HBr on an alkene in the presence of peroxide, which you are going to see in the alkene and alkyl halide chapter. It follows anti-Markovnikov rule, ये तो हम वहां पे देखेंगे कि एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। देन अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ये भी फिर से आप अल्कीन चैप्टर में देखोगे। वुड्स रिएक्शन जो अपने चैनल पे है, मैंने बताया कि कथक नृत्य रिएक्शन बोल के सुपर ट्रिक है जहां पे ये वुड्स रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन किया है याद रखने के लिए। उसके बाद डीकार्बोजिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बोरोडीन-हंसडीकर रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शंस वेयर फ्री रेडिकल formation takes place. Okay, so in this way we have completed the summary of free radical